Hello everyone, my name is Akhilesh. Welcome to EduSoft. Today we are going to discuss about RGB LED. So in this session we are going to discuss about introduction of RGB LED, types of RGB LED, how RGB LEDs work, RGB LED with Arduino, and applications of RGB LED. So first of all, we'll discuss about introduction of RGB LED. What is RGB LED? A white light produced by mixing three different colors like red, green, and blue. RGB lighting enables you to create millions of different colors of light, all based on these three primary colors. The main purpose of this RGB model is for sensing, representation, and displaying images in the electronic system. So in the simple term, we can say that RGB LEDs are electronic components that emit light in three primary colors: red, green, and blue. So these colors can be combined in various ways to produce a wide spectrum of colors. Okay, so हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सिंपल वाइट कलर, एक वाइट एलईडी जो तीन कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू. So we can say that RGB LEDs are widely used in various applications like including lighting, displaying, indicators, and for decorative purpose. So first of all, we discuss about types of RGB LED. So first type of RGB LED is common anode RGB LED, and the second one is common cathode RGB LED. So in common anode RGB LED, the anode of all three LEDs is connected together. So in the deep, we can say that in a common anode RGB LED, the anode of internal LEDs are all connected to external anode lead. To control each color, you need to apply a low signal or ground to the red, green, and blue leads and connect the anode lead to the positive terminal of the power supply. And in the cathode RGB LED, in a common cathode RGB LED, the cathode of the internal LEDs are all connected to external cathode lead. To control each color, you need to apply a high signal or VCC to the red, green, and blue leads and connect the anode lead to the negative terminal of the power supply. तो एक कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जो कॉमन एनोड एलईडी होता है, आरजीबी एलईडी होता है, उसमें क्या होता है, द एनोड ऑफ ऑल थ्री एलईडीज. जो एलईडी से एनोड होते हैं, एलईडी टू टर्मिनल डिवाइस होता है, एक उसमें होता है एनोड और एक होता है कैथोड. तो एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल. तो कॉमन एनोड में जो द एनोड ऑफ ऑल थ्री एलईडीज, जो तीनों एलईडी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की जो एलईडीज होती है, उसके जो एनोड टर्मिनल होता है, वो तीनों कनेक्टेड होते हैं टुगेदर, वो साथ में कनेक्टेड होते हैं. बट इन कॉमन कैथोड, द कैथोड ऑफ ऑल थ्री एलईडीज इज कनेक्टेड टुगेदर. जो तीनों एलईडीज होती हैं उसके कैथोड आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो देयर इज अ difference between common anode and common cathode LED. Next thing in how RGB LEDs work. An RGB LED can produce almost any color. So we can combine red, green, and blue. We can create or produce any color. There are some applications like outdoor decoration light, stage lighting designs, home decoration lighting, LED matrix display. To produce different colors, we set the intensity of each internal LED and combine the three color output. तो हमें जैसे जब हम कोई आर्ट क्रिएट करते हैं या आर्ट बनाते हैं, तो हम कई सारे कलर्स को मिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट कलर को प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं कलर मिक्सिंग करके. तो सेम उसी तरह ही हम तीन एलईडीज की थ्री जो कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, उनकी इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं या बना सकते हैं. वी आर गोइंग टू यूज PWM, मीन्स pulse with modulation, to adjust the intensity of red, green and blue LEDs individually. मतलब हम उसके pulse with modulation को
एडजस्ट करके, उसकी इंटेंसिटी को एडजस्ट करके हम कई सारे कलर्स को बना सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आरजीबी एलईडीज: एलसीडी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडोर आउटडोर लाइटनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन एंड सीआरटी। सो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आरजीबी एलईडीज का यूज होता है। जैसे हम घरों में जब भी डेकोरेशन करते हैं तो डेकोरेटिव लाइटिंग में भी आरजीबी एलईडीज का यूज होता है। तो इन तीनों एलईडीज को मिक्सिंग करके हम बहुत सारे कलर्स के कलरफुल लाइट यूज करते हैं, या उसको क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। आर्किटेक्चरल लाइटनिंग: जब भी कोई आर्किटेक्चरल लाइटनिंग होती है तब भी हम आरजीबी एलईडीज का यूज कर सकते हैं। ऑटोमोटिव लाइटनिंग: जैसे बहुत सारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। स्टेज लाइटनिंग एंड इवेंट्स: जो बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, उसमें भी हम जो कलरफुल लाइट देखते हैं वहाँ पे भी आरजीबी एलईडीज का ही यूज होता है। गेमिंग पेरिफेरल्स: जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे गेम चल रहे हैं जिसमें हम कई सारे पेरिफेरल्स यूज करते हैं, जैसे कलरफुल एलईडीज का यूज करते हैं। उसको हम अपने कीबोर्ड में भी इनबिल्ट कर सकते हैं, तो कलरफुल कीबोर्ड हम उसका बना सकते हैं, कलरफुल माउस बना सकते हैं, कलरफुल ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं जो कि आरजीबी एलईडी को यूज करके ही हम एक पेरिफेरल्स बनाते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स: जैसे कई सारे आज के टाइम पे स्पीकर्स आ गए हैं जिसमें हम आरजीबी एलईडी का यूज करके ही उसको हम कलरफुल स्पीकर का क्रिएट करते हैं। लाइटनिंग कंट्रोल सिस्टम: एजुकेशनल एंड आर्ट प्रोजेक्ट्स जो हम बनाते हैं उसमें भी आरजीबी एलईडी का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट होम लाइटनिंग: हम जो हमारा होम डेकोरेट जब करना होता है तो उसमें भी हम स्मार्ट लाइट का यूज करते हैं, जिसमें हम आरजीबी एलईडीज का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि आरजीबी एलईडी क्या होती है और वो कैसे यूज करते हैं हम, तो आरजीबी एलईडी तीन कलर का कॉम्बिनेशन होता है: रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसको एक एक्सपेरिमेंटल व्यू हम करके देखेंगे कि ये कैसे ग्लो करती है एलईडी विद द हेल्प ऑफ टिंकर कैड। टिंकर कैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कई सारे कंपोनेंट्स को यूज करके एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको तीन कलर अलग अलग एलईडी से जला के दिखाऊंगा कि हम वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले हमने एक ब्रेडबोर्ड ले लिया। तीन एलईडीज मैंने ले लिए: 1, 2 and 3। First one is red, second one is green, and third one will take blue color एलईडी। तो तीन कलर की एलईडी जैसे हमने ले लिया: रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तीन कलर की एलईडी हमने यहाँ पे ले ली। उसके बाद हमें यहाँ पे पावर सप्लाई भी करना है। तो 9 वोल्ट बैटरी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर का जो वायर है ये नेगेटिव सप्लाई है, इसको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। और इस वायर को भी हम चेंज कर सकते हैं इसका कलर, और पॉजिटिव टर्मिनल को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये मैंने पावर सप्लाई इस ब्रेडबोर्ड में पावर अप कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। तो ये सप्लाई यहाँ से हम कट करके इसको सप्लाई हम यहाँ से देंगे, नेगेटिव सप्लाई। और इसको हम ब्लैक कलर कर देंगे वायर। तो यहाँ मैंने पावर सप्लाई दे दिया दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ हमने निगेटिव सप्लाई दे दिया। तो जैसा कि आपको पता है जो एलईडी होती है वो टू टर्मिनल डिवाइस होती है: एनोड एंड कैथोड। एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जितने भी एनोड हैं उनको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, जो एलईडी का एनोड है तीनों एलईडीज का, उसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और जो कैथोड है उसको मैंने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा सर्किट बन गया। बट
इसमें क्या कमी है, आप लोग भी सोचिए, बट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमने इसमें डायरेक्ट यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दिया है, ग्राउंड सप्लाई दे दिया है, हमने रजिस्टर का यूज नहीं किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर रजिस्टर का यूज नहीं करते हैं तो फिर क्या आउटपुट आता है। जैसे मैंने स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये सारी एलईडी यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रजिस्टर का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे 3 रजिस्टर लेंगे। या हमने 3 रजिस्टर ले लिया। 470 ओम का, 470 ओम का हमने एक तीनों रजिस्टर ले लिया और इसकी वैल्यू हमने कर दी 470 ओम। तो इतनी वैल्यू की हमने एक रजिस्टर को एक एलईडी से कनेक्ट कर दिया। अब इस रजिस्टर के थ्रू हम एलईडी को कनेक्ट कर देंगे उसके एलईडी के कैथोड से। फिर से हम एक बार चेक करते हैं, स्टार सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे जल जाती है। तो ये एक प्रोजेक्ट हुआ जिसमें हमने 3 एलईडी का यूज करके 3 डिफरेंट डिफरेंट लाइट को ब्लिंक किया है। अब हम देखेंगे कि हम आरजीबी एलईडी का यूज करके इन सबको कैसे डिस्प्ले करते हैं एक लाइट। ये सारी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे। कोई भी चीज़ डिलीट करने के लिए आपको उस कंपोनेंट पे या उस वायर पे क्लिक करके डिलीट आइकन पे क्लिक करना होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं कैसे डिलीट कर रहा हूँ। अभी हमने आर्डिनो का यूज नहीं किया था, बट अब हम आर्डिनो का यूज करेंगे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेडबोर्ड ले लिया और हम अब यहाँ पे एक आर्डिनो बोर्ड लेंगे। उसके बाद हम एक आरजीबी एलईडी लेंगे और यहाँ कहीं हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी में पहला रेड कलर का वायर है, पिन है, देन कैथोड, देन ब्लू कलर एंड देन ग्रीन कलर। तो यहाँ पे हम एक एक रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये हमने 3 रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उससे पहले हम यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड है। इस कैथोड को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव सप्लाई दे दिया डायरेक्ट। उसके बाद हम इसको किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने रेड को पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर दिया और इसको कर दिया हमने रेड। उसके बाद ये ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है। हमने क्या किया, ग्रीन कलर को पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर दिया। दिस वन इज ग्रीन कलर।
इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया, और ये ब्लू कलर एलईडी है, इसलिए इसको मैंने ब्लू कलर कर दिया, और इसको मैंने पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर दिया। और इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। तो यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की वायर हमने कनेक्ट कर दी, पावर सप्लाई दे दिया और ग्राउंड दे दिया। अब हम चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि इसकी हमने अभी तक कोडिंग नहीं की है। तो इसके लिए हमें कोडिंग करने की आवश्यकता होगी। तो हम कोडिंग कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिख रहा है कोडिंग का, यहाँ पे हमें पहले क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म ओपन होके आएगा, जहाँ पे हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो हमने ये सर्किट बना लिया है, इसके बाद हमें कोडिंग करनी है। तो उसके लिए हमें कोडिंग सेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने पहले से यहाँ पे कोडिंग कर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी कलर हमने चूज़ किया है, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू, आरजीबी एलईडी इसको बोलते हैं, तो हम ये तीन कलर ही यूज़ करेंगे। तो इसको कौन से पिन पे हमें कनेक्ट करना है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। हैश डिफाइन एल डी आर मीन्स दिस। जो रेड कलर की एलईडी है वो पिन नंबर 11 पे, ग्रीन कलर की एलईडी पिन नंबर 13 पे, ब्लू कलर की एलईडी पिन नंबर 12 पे हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वाइट सेटअप में हम आउटपुट देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें मिलेगा। तो जैसा कि आरजीबी एलईडी में क्या हो रहा है, जैसे हम इसको इनपुट दे रहे हैं, पावर अप कर रहे हैं, तो हमें एलईडी रेड, ग्रीन और ब्लू पे आउटपुट मिल रहा है। उसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 पे, देन हम उसका आउटपुट चेक करेंगे। तो कोडिंग करने के बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट सिमुलेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट मिक्सिंग होके यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। येलो, रेड, पर्पल, रेड। तो ये सारी हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से टिंकर कैट की हेल्प से कर सकते हैं। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सर्किट्स और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हम आगे भी जुड़े रहेंगे। सो प्लीज़ वॉच all the videos and stay tuned for the next session. Thank you.